Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about direct and alternating current and its properties. First of all, we have to know that what is direct current. Direct current is that current which always flow in a single direction and have a constant magnitude. The current we get from battery, cell, etc. are direct current. The graph of direct current is shown here. This is time axis. Whenever you go along this direction, the time will increase, and according to time the current is always constant. It does not change. This is the axis of direct current which represent the direct current. The value of current is always constant and direction is unique. That's why it is called direct current. And now we have to learn about alternating current, which is generally called AC. A current that reverses its direction and changes its magnitude periodically is called alternating current. Most of the power stations, generators, etc. produces alternating current, and inverter is a device which converts direct current into alternating current. The graph of alternating current is shown in this figure. This is time axis. Whenever you go along this direction, the time will increase, and y axis represents the alternating current. At origin, when time is 0, the current is 0. But when time increases, current increase gradually. When time increases, current increase gradually, and at this point current will reach at peak point, means maximum current, and then gradually decreases and reaches to zero current at this point. And after this point it reverses its direction. It means then in reverse direction increase gradually and reach at maximum current and then decrease. It means in a complete cycle it changes its direction twice, first forward and then reverse. It means in a closed circuit, first of all it moves along clockwise direction and then anti-clockwise direction in one complete cycle. This is one complete cycle, and this is called time period. And you know, 1 upon time period is called frequency. In India, the 50 Hertz AC is used and 220 volt voltage. But in USA, 60 Hertz AC is used and 120 volt AC is used. It's okay. The advantage of AC is it is produces by EMI. By using the principle of EMI, then it produces easily, and transportation of alternating current is easier than DC current, because the power loss in alternating current is as much lower comparatively to DC current. It's okay. These are the advantages of AC. Most of the appliances we use in our homes is compatible for AC, alternating current. That's why we use inverter to convert direct current into alternating current to use that appliances. It's okay. Now we have to study about domestic electric circuit. This is the diagram of domestic electric circuit. This is main wire comes from pole. पोल से जो मेन वायर आते हैं, दो तार आते हैं, एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर. लाइव वायर में पोल फ्यूज यूज किया जाता है. जब कभी पोल पर से कुछ ठीक करना हो या मेन सप्लाई में कुछ ठीक करना हो तो हम पोल फ्यूज को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिससे मेन वायर का जो कनेक्टिविटी होता है वो पोल से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इजीली हम कहीं भी कोई कनेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं. मेन वायर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाता है. इलेक्ट्रिसिटी मीटर में दो वायर, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक अर्थिंग होता है. अर्थिंग सेफ्टी के तौर पे यूज़ किया जाता है. अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे सेफ्टी डिवाइसेस में. नाउ इलेक्ट्रिसिटी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को सप्लाई दी जाती है, जहाँ से
अलग अलग कमरों की जो सप्लाई दी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक मेन वायर जाता है, ये है मेन वायर जिसका कनेक्टिविटी हर एक सॉकेट में दिया हुआ है, और इधर से जो है न्यूट्रल है जिसकी कनेक्टिविटी इधर से नीचे से अलग अलग सॉकेट में दिया जाता है। जब भी हमें स्विच यूज़ करना होता है तो हम मेन वायर में यूज़ करते हैं, यहाँ कट करके स्विच यूज़ कर लेते हैं। तो स्विच से जो हम डिस्कनेक्ट करते हैं वो सिर्फ मेन यानी कि लाइव वायर को ही डिस्कनेक्ट करता है, न्यूट्रल की सप्लाई होती रहती है। बट आप जानते हैं जब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये सर्किट जो है इनकम्प्लीट रहेगा और करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, तो डिवाइस ऑफ हो जाएगा। और अर्थिंग भी यहाँ पर किया गया है, ये सारे अर्थिंग आकर ग्राउंडेड हुए हैं। ग्राउंड के अंदर सैंड साल्ट मिला करके हम कॉपर प्लेट के साथ ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, तो ये ग्राउंड के कंपैरेटिवली लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है। ग्राउंड को हम 0 वोल्टेज पोटेंशियल पे मानते हैं, जबकि इसकी पोटेंशियल जो है नेगेटिव में चली जाती है साल्ट की वजह से। तो जब कभी मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है, वो हमारे बॉडी से ना हो करके इस अर्थिंग वायर के थ्रू नीचे चला आता है, तो हमें शॉक लगने से बच जाते हैं हम। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट में जो हम प्लग या स्विचेस यूज़ करते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पावर प्लग और एक होता है जनरल प्लग या नॉर्मल प्लग हम बोलते हैं, नॉर्मल स्विच या नॉर्मल प्लग। दोनों प्लग में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल प्लग हम छोटे डिवाइसेस जैसे मोबाइल चार्जर, फैन, टेलीविज़न, डीवीडी, ऑडियो प्लेयर, लैपटॉप चार्जर, इस सब के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये जनरली 5 एम्पियर रेटिंग के होते हैं, इसमें 5 एम्पियर तक का करंट जो है फ्लो होगा, तो ये डैमेज नहीं होगा। जबकि जो पावर सॉकेट होता है वो 15 एम्पियर रेटिंग से लेकर 20 एम्पियर तक का होता है, जिसमें हम हीटर, गीज़र, ब्लोअर यानी हैवी एप्लियंसेस यूज़ करते हैं ताकि डैमेज ना हो, उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस सेट होता है। इट्स ओके। नाउ we have to learn about electric fuse. Electric fuse is a safety device which is used in electric circuits to protect electric circuit from damage to overloading or short circuiting. Electric fuse जो होता है वो short circuiting या overloading की वजह से जो हमारे अप्लायंसेस कभी कभी जल जाते हैं उनसे बचाने का काम करता है, इसलिए ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है जनरली एक वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो करता है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो गर्म होता है, और जब कभी वोल्टेज बढ़ता है तो वो एक लिमिट से ज़्यादा गर्म होने लगता है, और जैसे ही वो लिमिट से ज़्यादा गर्म होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, तुरंत वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करेगा तो पूरा सर्किट जो है कट हो जाता है और हमारे डिवाइसेस जो है वो सेफ रह जाते हैं, बच जाते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन पूछता रहता है ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड, तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब वोल्टेज बढ़ता है तो हीट होने लगता है फ्यूज वायर और हीट होकर के वो मेल्ट कर जाता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे प्रिंसिपल पे यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज पूछता रहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इसको बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ safety device which protects the electric circuit from damage due to overloading or short circuiting, and it is always connected in series, and fuse wire is made up of metal or alloy like lead, tin, aluminum and copper. Now we have to study about what is overloading. Overloading is caused due to increase in voltage. जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, कभी कभी बाई फॉल्ट पावर हाउस के फॉल्ट की वजह से 400 वोल्टेज या 300 वोल्ट की सप्लाई हमारे घरों में आ जाती है, तो हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उनकी कम कैपेसिटी बियर करने की 220 से 240 वोल्ट तक है, और जब 400 वोल्ट आएगा तो वो जल जाएगा, उसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। इट्स ओके। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं तो इस सिचुएशन को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही दोनों कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से
ओवरलोडिंग का केस जनरेट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग में दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और उसमें स्पार्क और फायर का जो है काज शुरू हो जाता है, जलना शुरू कर देता है, स्पार्किंग शुरू कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।